صلوا علیہ وآلہ اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محترم حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ نشست میں ہم نے روزوں کی نیت کے سلسلے میں کچھ عرض کیا اور یہ کہا گیا کہ بغیر نیت کے کوئی کام بھی درست نہیں ہوگا۔ آج ہم مختصراً یہ عرض کریں گے کہ روزہ توڑنے والی کون سی چیزیں، یعنی جن کا آدمی مرتکب ہو جائے، جس کو وہ اختیار کر لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ آج ہمارا موضوع اور اس پر ہم کچھ عرض کریں گے۔ مجموعی طور پر خاکہ ذہن میں رہے تو مسئلے کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ انسان کے بدن میں 5 ذرائع ایسے ہیں، ان کے ذریعے سے کوئی چیز اگر انسان کے بدن میں داخل ہو تو روزے کو توڑ دے گی۔ مثلا منہ، ناک، کان، پیشاب اور پاخانے کی جگہ، ان 5 ذریعے سے کوئی چیز اگر اندر چلی جائے تو یہ روزے کو توڑ دے گی۔ سب سے پہلا ذریعہ منہ، کہ جس کے ذریعے سے کوئی شے اگر اندر داخل ہو جائے تو روزے کو توڑ دے گی۔ بحیثیت مسلمان ایک روزے دار کے موٹی موٹی باتوں کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ کون کون سی چیز روزہ توڑنے والی۔ مثلا جان کر کے کچھ کھا لیا یا پی لیا یا کسی طریقے سے کوئی چیز منہ سے نگل لی، ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے۔ اور اسی طریقے سے اگر اس نے اپنی بیوی سے جمع یعنی مجامعت، خلوت صحیحہ اگر کر لی، ظاہر ہے کہ اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دہن سے یعنی منہ کے ذریعے سے جو چیز بدن میں جائے ان کی صورتیں مختلف ہیں۔ مثلا کسی شخص نے دانت نکلوایا اور دانت یا داڑھ نکالنے کے آپ نے دیکھا کہ کافی دیر تک خون مسوڑے سے بہتا رہتا۔ اگر یہ خون حلق میں چلا گیا اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی دھواں اس نے کھینچا، دھوئیں کو کھینچنے کی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ استثناء بعد میں ہم عرض کریں گے۔ مثال کے طور پر سگریٹ پیا یا حقہ یا اسی قسم کی کوئی اور چیزیں، متاخرین فقہاء نے اس پر یہ قدغن لگائی کہ کوئی شخص سگریٹ پی کر یہ کہے کہ دھواں میں نے پیٹ میں نہیں ڈالا، منہ ہی سے نکال دیا، تو اس کی یہ بات نہیں مانی جائے۔ اسی طرح کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے حقہ پی کر اور حقے کا گھونٹ میں نے نہیں لیا، اندر تک دھواں نہیں گیا، باہر ہی سے میں نے خارج کر دیا، تو اس کی بات نہیں مانی جائے۔ اسی طریقے سے کوئی تمباکو کھانے والے حضرات اگر منہ میں تمباکو رکھے یا چاہے اور یہ عذر کریں کہ ہم نے خالی منہ میں رکھا اور اس کے بعد نکال دیا، یہ عذر نہیں مانا جائے۔ اسی طرح نسوار کھانے والے حضرات نسوار کو اگر وہ منہ میں رکھے اور یہ کہیں کہ ہم نے اس کو تھوک دیا، اس کی یہ بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ کہ سال ہا سال برس ہا برس کے فقہاء نے اپنے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حکم لگایا کہ بظاہر کوئی چیز ہم منہ میں رکھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حلق سے نیچے نہیں اتری، مگر وہ اپنے تجربات یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے باریک اجزاء ضرور پیٹ میں جاتے، حلق میں چلے جاتے۔ اور ویسے بھی یہ روزے کی روح کے خلاف ہے کہ کوئی آدمی تمباکو منہ میں رکھے یا نسوار منہ میں رکھے اور یہ کہے کہ حلق سے نیچے نہیں اترا۔ ان تمام خواہشات کو چھوڑنے ہی کا نام تو روزہ، اس لیے اس پر بھی روزہ توڑنے کا علماء نے حکم لگایا۔ عموماً بعض حضرات کے دانت میں بعض امراض جس سے عموماً وضو کرنے میں یا دانت میں انگلی کرنے یا مسواک کرنے سے خون نکل جاتا ہے۔
अव्वल तो वजू के वक्त में जब तक खून बहता रहेगा तो वजू ही दुरुस्त नहीं होगा, यानी खून बहना जब रुक जाए तब वजू किया जाए। लेकिन वो खून जो उसके मुंह में से निकला अगर वो हलक के नीचे उतर गया, ऐसी सूरत में भी रोजा टूट जाए। इसी तरीके से कोई चीज अपने मुंह में ली, रंगदार डोरा या इससे मिलती हुई कोई चीज मुंह में जाने के बाद उससे रंग पैदा हुआ और वो रंगीन थूक अगर वो निकल गया तो ऐसी सूरत में भी रोजा टूट जाएगा। कोई चीज भी बाहर से अंदर अगर जानकर उसने मुंह में दाखिल की, वो हलक से नीचे अगर उतर गई तो रोजा टूट जाए। इसी तरह उमूमन लोगों में न जाने किस तरह ये मशहूर हो गया कि अगर कै हो तो रोजा टूट जाता है। तो अब लोग क्या करते हैं, अगर कै हो गई खुदा ना खास्ता, तो अब वो सोचते हैं कि रोजा टूट गया, तो रोजा टूटने की सूरत में वो फिर खाने लगते हैं या पानी पीने लगते हैं। सबसे पहली बात ये जहन में रहे, जहां भी अहकाम है रोजा तोड़ने वाले, अगर उसके किसी सबब से रोजा टूट जाए तो टूटने का मतलब हरगिज ये नहीं कि खाना पीना जायज हो जाएगा, नहीं। अगर कुछ अवारिस से रोजा टूट भी जाए तो बकिया दिन को रोजे की तरह गुजारना होगा। इसकी कई किस्में हैं, उस पर हम गुफ्तगू नहीं करते। तो कै उल्टी चाहे मुंह भर कर उससे रोजा नहीं टूटता। हाँ, जो कहीं पढ़ा होगा जिससे गलत फहमी हुई वो ये कि जान करके अगर कै करे, मसलन किसी साहब को मतली हो रही है, बाज लोगों का मिजाज ऐसा होता है कि कै हो जाए तो इफाका हो जाता है, तो बाज़रात बाज़ाब्ता मुंह में उंगली डालकर और इस तरीके से तय करते। अगर वो कै मुंह भरकर हो तो ऐसी सूरत में रोजा टूट जाएगा। लेकिन यहां रोजा टूटने का मतलब ये होगा कि दिन रोजे का सा गुजारा जाएगा और उसकी एक कज़ा रखी जाएगी, उस सूरत में रोजा टूटेगा। खुद बखुद अगर कै आ जाए, वो चाहे कितनी ही हो, यहां तक कि मुंह भरकर की अगर कै हो और खुद बखुद अगर आ जाए कि जिसको आदमी रोक नहीं सकता, तो ऐसी सूरत में कै होने से रोजा नहीं टूटेगा। अलबत्ता कै खुद हुई, जानकर नहीं की, उसमें रोजा तो नहीं टूटेगा, मगर कुछ अज्जा उसके अगर मुंह में आए और मुंह में आने के बाद वो उसके कुछ अज्जा को निकल गया, ऐसी सूरत में रोजा टूट जाएगा। ये तो उस सूरत में है कि जब किसी बदहजमी या पेट की खराबी की वजह से कै हो। लेकिन बाज कै जिसको तिब में सफरा कहते, आदमी का मिजाज मतली करने में जब वो कै होती है तो खालिसतन पानी निकलता। अगर किसी ने जान करके कै की और कै में अनाज नहीं निकला बल्कि बलगम या सफरा पानी या इसी तरीके से खून, इनके जान करके तय करने में अगर ये चीजें उसके हलक से निकले तो ऐसी सूरत में रोजा नहीं जाएगा जब तक कि मुंह भरकर वो कहे कि जो अनाज मादे में पहुंच गया और उसे वो निकाले, तो ऐसी सूरत में जान कर तय करने से रोजा टूटेगा। और खुद ब खुद अगर कह आए, वो कितनी ही बड़ी उसमें मुंह भर भी हो, तो उसमें रोजा नहीं टूटता। तो इस तरीके से कोई शय अगर हलक से नीचे उतरेगी तो रोजे को तोड़ देगी। इसकी एक और मिसाल है कि जैसे उमूमन सहरी खाने में कुछ अज्जा अनाज के मुंह में रह गए या कुछ गोश्त के जर्रात उम्मन कहीं दांत में या डाढ़ में खला हो, उसके बारीक अज्जा जो है वो कहीं रह जाते। अगर वो चने के बराबर हैं तो हुक्म अलग, लेकिन अगर वो बहुत ही मुख्तसर जर्रात हैं पहले दांत में और दांत में से निकल कर अगर उसे निगल गया तो इसका इस्तिस्ना है, इसमें रोजा नहीं टूटेगा। रोजा उस सूरत में टूटेगा कि किसी के दांत में कोई गोश्त का जर्रा फंसा, वो उसे निकाले, बाहर निकालने के बाद वो अगर निकल गया, ऐसी सूरत में रोजा टूट जाएगा। तो ये बारीक जो मुंह में जर्रात उम्मन रह जाते उससे रोजा नहीं टूटता। इसीलिए कहा गया कि सहरी करने के बाद मुंह अच्छी तरीके से धो लिया जाए ताकि उसके खाने वगैरह के जो अज्जा है उसके मुंह में बाकी न रहे बल्कि वो निकल जाए। तो ये सूरत तो थी मुंह से कोई शय के दाखिल होने।
दूसरी सूरत नाक में अगर दवा डाली या तेल डाला, इन सूरतों में रोजा टूट जाए। इसी तरीके से नाक से उसने अगर धुआं खींचा जान करके, तो ऐसी सूरत में भी उसका रोजा जो है वो टूट जाएगा। अलबत्ता उमन आपने देखा कि आजकल हम गाड़ियों में जब सफर करते हैं तो बहुत धुआं पैदा होता, उसे हम जानकर के नहीं खींचते बल्कि वो हलक में चला जाता। या कहीं रोड अगर बने हुए न हो, कच्चे में अगर आप सफर करें तो गर्दो गुबार उड़ता, ये गर्दो गुबार अगर हलक में चला जाए, इसका इस्तिस्ना है, इसमें रोजा नहीं टूटेगा। जैसे हम किसी आटा पीसने की चक्की के करीब से गुजरे या आटा पिसवा रहे और उसका जो गुबार है वो अगर हलक में पहुंच जाए या नाक में पहुंच जाए बेकस, ऐसी सूरत में भी रोजा नहीं टूटेगा। एक चीज जिससे उम्मन हमें वास्ता पड़ता है, नमाजी हजरात को, जाहिर आदमी जब रोजा रखता है उम्मन, अगरचे गैर रमजान में नमाज न पढ़े, लेकिन ये कि फिर भी रोजेदार कम से कम रमजान में नमाजी हो जाता। वुजू करते वक्त भी बड़ी एहतियात की जरूरत। अगर आपने कुल्ली की और कुल्ली करने में अगर पानी हलक से नीचे उतर गया तो ऐसी सूरत में भी रोजा टूट जाएगा। और एक सूरत उसकी ये है कि नाक में पानी चढ़ाया, तो नाक में पानी चढ़ाते वक्त अगर ये पानी दिमाग में पहुंच जाए, ऐसी सूरत में भी रोजा टूट जाएगा। यानी ये जहन में रखिए कि हम आज उन्हीं चीजों को दोहरा रहे हैं जो रोजा तोड़ने वाली है। तो नाक के जरिए से पानी अगर दिमाग में पहुंच जाए तब भी रोजे को तोड़ देगा। और उसकी आम अलामत यह है कि भाई कैसे पता चले कि दिमाग में पानी पहुंच गया। जब आप पानी नाक में लेंगे तो अगर दिमाग में पहुंच जाए तो आप देखेंगे पीछे बहुत एक खारिश और बड़ा एक जो गया गोया एक तड़का सा लगता है दिमाग में, तो ऐसी सूरत में रोजा टूट जाएगा। लेकिन इसमें शर्त यह है कि कुल्ली करते वक्त अगर कोई घूंट पानी का हलक से नीचे उतर गया या नाक में पानी लेते वक्त पानी दिमाग में पहुंच गया, और इन दोनों सूरतों में अगर उसको रोजेदार होना याद है तब रोजा टूटेगा। और अगर उसको रोजेदार होना याद नहीं तो ऐसी सूरत में रोजा नहीं टूटेगा। बल्कि आपने तो आम उलमा से सुना और किताबों में पढ़ा होगा कि कोई शख्स भूल कर अगर पेट भर भी खा ले, पेट भरकर पानी भी पी ले, भूले से हो, तो उसका रोजा नहीं जाएगा। रोजा ना जाना तो अलग बात है, बल्कि एक हदीस में हुजूर फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर भूल कर खा ले और पी ले तो जो उसने खाया, जो उसने पिया भूले से, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने खिलाया और पिलाया। अब कि आप अगर किसी को खाता हुआ या पीता हुआ देखें तो उलमा ने मुफ्ताब कौल ये बयान किया, यानी फतवा इस कौल पर है कि देखने वाले आदमी पर वाजिब है कि वो उससे कहे कि भाई तुम पी रहे हो या खा रहे हो, तुम्हारा रोजा, फौरन उसको टोक दिया जाए। ये उस पर देखने वाले पर वाजिब है। और इसकी और कई और किस्में हैं, तवालत से हम कता नजर करते हुए जो जरूरी बातें उन पर हम कलाम कर रहे हैं। तो नाक में पानी चढ़ाते वक्त दिमाग में पानी पहुंच गया, कुल्ली करते वक्त पानी का घूंट नीचे उतर गया हलक से नीचे, इन दोनों सूरतों में अगर रोजेदार को रोजेदार होना याद, रोजा टूट जाए। अगर उसे अपना रोजेदार होना याद नहीं तो ऐसी सूरत में उसका रोजा जो है वो नहीं टूटेगा। लिहाजा नाक के जरिए दवा या तेल, ऐसी चीजों से अपनी नाक को बचाना चाहिए कि इसके जरिए से भी कोई चीज अगर अंदर पहुंची तो इन सूरतों में रोजा टूट जाएगा। इसी तरीके से कान, उलमा ने कान में दवा या तेल डालने से फरमाया कि रोजा टूट जाए। जानकर उसने तेल डाला या कोई दवा डाली और ऐसी सूरत में कान में दर्द या कोई और भी अवारिज हो, लेकिन रोजा टूट जाएगा। लेकिन इस पर तमाम उलमा मुत्तफिक है कि गुस्ल करते वक्त या नहाते वक्त या वुजू करते वक्त अगर पानी कान में चला जाए तो पानी कान में चले जाने से रोजा नहीं जाएगा, बल्कि खास दवा या तेल डाला गया तो ऐसी सूरत में रोजा टूट जाएगा। अब आइए, ये तो थे तीन जराए कि जिनमें से कोई शय अगर अंदर पहुंची ये रोजे को तोड़ देगी। पेशाब और पाखाने की जगह से भी कोई चीज अंदर दाखिल हो जाए तो इससे रोजा टूट जाएगा। लेकिन उलमा ने इसमें मर्द के लिए
पेशाब की जगह का इस्तिस्ना किया। मसलन ये कि पेशाब की जगह सुराख में कोई जख्म हो, उस जख्म में अगर कोई दवा लगा दी गई या कुछ और दवा डाली गई या कोई और ऐसी चीज जो उसके मर्ज को इफाका करती, उसमें अगर डाली गई तो मर्द का रोजा तो नहीं टूटेगा, लेकिन औरत का रोजा ऐसी सूरत में टूट जाएगा। पाखाने के मकाम से अंदर कोई चीज जाना, बज़ाहिरी मसला बड़ा आपको अजीब लगता है कि वहां से कौन सी चीज जाए, उसमें उलमा ने लिखा कि इस्तंजा करने में मुबालगे से काम ना लिया जाए। मसलन जब हम बैतुल खला जाते तो बैतुल खला के वक्त में धोते वक्त बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए कि जब आबे दस्त लेते हैं और पाखाने का अंदरूनी मकाम अगर बाहर आ जाए और ऐसे आबे दस्त लेने में पानी अगर अंदर चला जाए तो ऐसी सूरत में भी रोजा टूट जाएगा। इसी तरह जो बवासीर का मर्ज है, आपने दुआ फरमा अल्लाह ताला इस मर्ज से अल्लाह ताला सबको बचाए, बड़ा मूजी मर्ज, उसमें इस कदर खारिश और जलन होती है कि बगैर दवा लगाए जिस आदमी को ये मर्ज हो उसको इफाका नहीं होता। अगर ये दवा या तेल या वो लोशन अगर बाहर से लगा दिया जाए तो रोजा नहीं जाएगा। अगर अंदर लोशन या कोई तेल या कोई दवा लगाई जाए, पाखाने के मकाम के अंदर अगर वो दवा या लोशन या वो लेप या वो दवा पहुंच जाए, ऐसी सूरत में रोजा चला जाएगा। इसलिए उलमा ने मना किया कि आबे दस्त यानी पानी लेते वक्त सांस रोककर नीचे की तरफ जोर न दिया जाए कि पाखाने का मकाम अंदरूनी अगर बाहर आ जाए और उसमें अगर पानी लगे और फिर उसके बाद पानी अंदर चला जाए, इसमें रोजा टूट जाएगा। एक सूरत उसकी यह है कि जैसे पानी लेते वक्त अगर पाखाने का मकाम बाहर आ जाए और अब अगर धोया जाए तो अब जाहिर है कि अंदर पानी जाने का तो अंदेशा है। ऐसी सूरत में कपड़े से उस मकाम को साफ कर दिया जाए ताकि कोई तरी जो है वो अंदर न चली जाए। कि ये 5 वो जराए हैं कि जिनमें से कोई चीज अगर अंदर दाखिल हो तो ये रोजे को तोड़ देगी। अब आइए इसमें थोड़ी जो आजकल के नए हजरात जो है उन्होंने मसाइल बयान किए। अब इसमें हम यही कह सकते हैं, हतमी राय तो नहीं बल्कि एहतियात जरूरी है। एक तो हमारी पिछली सारी किताबों में आपने पढ़ा कि आंख में अगर दवा डाली जाए तो रोजा नहीं जाएगा। जैसे सुरमा लगाया जाए, काजल लगाया जाए, ये बेअईनी ही कोई लिक्विड दवा अगर आंख में कोई ड्रॉप वगैरह डाला जाए तो रोजा नहीं जाएगा। जदीद उलमा ने एक नई तहकीक में ये कहा कि भाई आंख में भी कोई रास्ता अंदर जाने का है, ये रोजे को तोड़ देगा। तो हम जाहिर है कि वही मसला बयान करेंगे जो किताबों में है कि आंख में अगर कोई दवा डाली तो हमारी तमाम किताबों में यही मसला है कि रोजा नहीं टूटेगा। अगर नई तहकीक ये है कि आंख में कोई ऐसा सुराख है कि जिससे आंख में दवा डाली जाए तो दवा अंदर चली जाएगी। अगर नई तहकीक ये है तो हम इसमें राह एतदाल यही बयान करेंगे कि आंख में दवा डालने से परहेज किया जाए। इसी तरीके से बाजों ने ये तहकीक की कि पूरी तहकीक से पता चला कि कान के अंदर अगर दवा डाली जाए तो कान में कोई सुराख नहीं कि अंदर चली जाए दवा, लिहाजा उसमें दवा डालने में कोई हरज नहीं, रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन हमारे यहाँ फिक्र की तमाम पुरानी किताबों में यह है कि कान में अगर उसने दवा या तेल डाला तो रोजा टूट जाएगा, लिहाजा बचना चाहिए। इसी तरीके से इंजेक्शन लगाने के सिलसिले में भी उलमा की 2 राय। बाज तो यकसर कहते कि रोजा टूट जाए और बाजों ने उसका इस्तिस्ना किया। लिहाजा रोजे जैसी अजीम इबादत को शुबहे और शक की बुनियाद पर अदा करने से बेहतर यह है कि अगर कोई इंजेक्शन वगैरह अगर लाजिम हो लगाना, या तो सहरी के वक्त में लगा लिया जाए या इफ्तार के बाद में या तरावी वगैरह के बाद लगाया जाए ताकि रोजे को किसी शुबहे का शिकार न बनाया जाए और ऐसे तमाम शुबहे की चीजों से परहेज किया जाए। एक मसला उम्मन लोगों में बड़ा मुतनाज़े, आपने देखा कि हमारे यहां उम्मन अखबार वाले या जंग अखबार वाले भी एक आलिम को किसी को बिठाकर और लोगों से मसाइल कहते, दावत देते कि पूछे, और वो आलिम जो है वो बराह रास्त उनको मसला बताता है। असल में जो आलिम इसका माहिर नहीं है तो बेहतर तो ये है कि वो ना फतवा दे ना मसला बताए।
अब हमारी यहां ये आम हो गया कि अगर आप चलते फिरते आदमी से भी कोई मसला पूछ ले तो वो भी आपको बता देगा, वो मना नहीं करेगा भाई किसी आलिम से पूछो मेरा क्या ताल्लुक मसाइल की दुनिया, वो भी आपको मसला बता देगा, चाहे वो मसला कितना ही संगीन हो। किसी से पूछे तो आदमी जो उसके बताने में कभी तरद्दुद नहीं करता। अब एक आला है जिन हजरात को तमा हो जाए वो इस्तेमाल करते हैं। आप देखा कि वो गोया एक तरह से वो उसमें दवा होती है और उसको दबाने से उस दवा का एक फुवारा जैसा निकलता है और वो जब मुंह से खींचा जाए तो ये जो फेफड़े की रगे हैं इन सब की वो इस्लाह कर देता है, जिससे दमा जो है यानी सांस जो उखड़ता है आदमी का वो एतदाल या मामूल पर आ जाता है। उमूमन वो लोग जिन्होंने न उसका तज्जिया किया न कभी उसे देखा, खबरें अखबार में किसी मसाइल में कहीं छप गया या किसी ने मसला बता दिया कि जी इससे रोजा नहीं टूटता। कल ही परसों एक साहब ने मुझसे पूछा, भाई फलां साहब ने कहा इससे रोजा नहीं टूटता। आप उस पंप को इस तरीके से पंप करके देखिए, उससे बिल्कुल दवा के अज्जा बाहर निकलते हैं। वो आदमी अगर मुंह में पंप करे तो ये दवा के सारे अज्जा उसके फेफड़ों में पहुंचते हैं। ऐसी सूरत में भी रोजा टूट जाएगा। जिन्होंने भी फतवा दिया मैं समझता हूं बगैर तहकीक के फतवा दिया। जहां अखबार या रसायल में ये मसला छपा तो उस आलिम दीन बंदे खुदा ने ना उसको जानने की कोशिश की न उसके अज्जाए तरकीबी पर कोई गौर किया। तो ऐसी सूरत में कई लोगों ने फोन करके कहा जी हम तो वो इस्तेमाल करते तो हमारे रोजे का क्या होगा, जाहिर है कि रोजा टूट जाएगा। किसान ये भी कहा कि भाई अगर ये मर्ज हो तो फिर तो हम जिंदगी भर रोजा नहीं रख सकते। फिलवाते अगर उसके बगैर इस पंप किए अगर उसका गुजारा नहीं होता और उसकी जान खतरे में है तो शरन ऐसा आदमी माजूर है, वो रोजा ना रखे, बजाय इसके कि रख करके वो तोड़े नहीं, बल्कि वो सिरे से रोजा ना रखे। लेकिन ये दियानतदारी से वो अपने आप को ये चेक करे कि वाकई अगर उसका इस्तेमाल न किया जाए तो आदमी की जान जो है वो खतरे में और सख्त उसको अजियत होती जो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो ऐसी सूरत में शरन वो माजूर है, उसको चाहिए कि रोजा न रखे। और अगर ये मर्ज आर्जी है, मसलन इसकी कई किस्में, कभी कभी ये मर्ज सर्दियों में पैदा होता गर्मियों में नहीं होता, तो सर्दियों में रोजा न रखे और गर्मियों में उन रोजों की कज़ा करे। और अगर ये मर्ज दवामी कि हमेशा ये मर्ज रहता है तो उसको चाहिए कि फिर वो उस मामले में फिदिया देगा और वो रोजा नहीं रखेगा, इसलिए कि वो शरन माजूर है। ये चंद वो सूरतें हैं जो उम्मन हमें दरपेश होती हैं रोजा रखने न रखने के सिलसिले में या रोजा टूटने और न टूटने के सिलसिले में। तो वो चंद सूरतें जो हमारे जहन में थी वो हमने आपके सामने बयान कर दी और इंशाअल्लाह कल हम उन चीजों का बयान करेंगे जिनसे रोजा नहीं टूटता। ये चंद सवालात हैं, इनके हम जवाब देते। ये देखिए बिल्कुल ही बहुत बारीक मत लिखा करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। किसी साहब ने पूछा मुसलमान और मोमिन में क्या फर्क है। देखिए मुसलमान ही मोमिन होता, मोमिन ही मुसलमान होता। असल में मुसलमान लफ्ज फारसी में है और मोमिन जो है ये अरबी में है। अरबी में मुस्लिम भी कहा गया, मोमिन भी कहा गया, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें बड़ी प्यारी बात कही। वो एक आदमी सवाल लेकर आया तो उनको शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने समझाया। किसी में तनाजा था कि मोमिन किसे कहते हैं और मुसलमान किसे कहते हैं। ये दोनों हजरात शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के पास जब पहुंचे तो कहा साहब हमें ये तनाजा है, हमें ये बता दीजिए मोमिन किसे कहते मुसलमान किसे कहते। तो शाह साहब ने उनको समझाने के लिए बड़ा बेहतरीन वाइजाना गुफ्तगू करते हुए फरमाया, मियां हम हर उस आदमी को मुसलमान कहते हैं जो इस्लाम में दाखिल हो जाए, जो इस्लाम में दाखिल हो जाए वो मुसलमान। और मोमिन की तारीफ यह है जिसमें इस्लाम दाखिल हो जाए। क्या मतलब? जिसमें इस्लाम दाखिल हो जाए, चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते वो मुसलमान नजर आएगा। तो बज़ाहिर इसमें कोई फर्क नहीं है, ज्यादा उलझन की जरूरत नहीं है। जिन्होंने ये पर्चा लिखा वो मुसलमान भी हैं और मोमिन भी। दूसरा पर्चा ये है, अगर किसी शख्स को पेशाब की बीमारी न हो और इहराम की हालत में तवाफ के दौरान उसके चंद या एक कतरा निकल जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है। ये भी बहुत अच्छी बात आपने पूछी। किसी इंसान का मसाना अगर कमजोर हो जाए तो मसाना कमजोर होने की सूरत में कभी क्या होता,
सीढ़ी पर उतरते चढ़ते कभी कभी कतरा निकल जाता, या वजन उठाने में कभी कभी कतरा निकल जाता, या इसी तरीके से खांसी में भी कभी कभी कतरा निकल जाता। तो ऐसे आदमी का कतरा अगर निकले तो ये शरन माजूर नहीं है। अगर ये कतरा निकल जाए तो उसका वुजू भी टूट जाएगा, और इहराम पर अगर वो पानी लगे तो इहराम भी नापाक हो जाएगा। ऐसी सूरत में नमाज से भी फौरन निकल जाएगा। अलबत्ता तवाफ में इतनी रियायत है कि जैसे 3 चक्कर उसने पूरे लगा ली, 3 चक्कर लगा लिए, अब कतरा निकला, तो ऐसी सूरत में वो चला जाए, कपड़े को साफ करे, वुजू करे और तवाफ वहीं से शुरू कर दे जहां से वो नापाक हुआ था। समझ के साथ इसमें इतनी रियायत है। नमाज में भी ये है कि कोई कतरा या नापाकी हो जाए, लेकिन उसमें उलमा ने 13 शर्तें लगाई हैं। अब अवाम का वुजू टूट जाए तो वो कैसे वुजू करे, कैसे नमाज में शामिल, उन 13 शर्तों में से कोई एक भी मफकूद हो गई तो नमाज फासिद हो जाए। ये 13 शर्तें, तो इमाम का वुजू टूट जाए तो शायद उसे याद नहीं रहे तो मुक्तदी का क्या कुछ। तो ऐसी सूरत में वो नमाज को तोड़ दे, ताजा वुजू करे और उसके बाद असर 9 नमाज में शामिल हो जाए। तो इहराम की हालत में भी अगर ऐसा मामला पेश आए तो सूरत में वुजू टूट जाएगा, तवाफ छोड़ दे और जहां भी इहराम पर वो कतरा लगा, इहराम को भी धोए और सतर को भी धोए और दोबारा वुजू करके और उसके बाद में तवाफ शुरू करे। किसी साहब ने पूछा क्या मुश्तजनी जो है ये गुनाह है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुश्तजनी करने वाले को मलून करार दिया। फरमाया ऐसा शख्स जो है वो मलून है, इन कामों से बचना चाहिए। और ऐसी सूरत में अगर रमजान की हालत में हो तो रोजा भी टूट जाएगा और ऐसी सूरत में उस पर कफ्फारा भी लाजिम होगा। खाने काबे से कितने फासले पर इहराम बांधना चाहिए, इसका हुक्म क्यों दिया गया? अच्छा, नजदीक से क्यों नहीं बांध सकते? इहराम पहनने के बाद में एक उम्रा किया और दूसरा उम्रा करने के लिए इहराम उतार कर दोबारा इसी मकाम पर इहराम पहना जाएगा या उसी इहराम में दूसरा उम्रा कर सकते हैं? ये भी अच्छी बात आपने पूछी। देखिए, ये लफ्ज़े क्यों का जवाब तो किसी मौलवी के पास नहीं। हम इसके पाबंद हैं कि अल्लाह उसके रसूल जो हुक्म दिया खंदा पेशानी से उस पर अमल शुरू करो। हमारे दीन में यह है कि मीकात से बाहर इहराम बांधकर दाखिल होना, यानी मीकात के अंदर का जितना भी इलाका है इस सबको हिल कहते। मसलन मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मीकात, जैसे हम यहां से जाएं, समंदर में एक पहाड़ है, वहां से हमारी मीकात समंदर में से शुरू हो जाती। अब हवाई जहाज में जाने वालों के लिए यह है कि जद्दा आने से एहतियातन 15 मिनट या आध घंटा पहले वो इहराम बांध ले। इराकी काफिले जहां से आते हैं उनका जो है वो अलग है। मदीने मुनव्वरा से जो आते हैं काफिले तो अबियार अली, जो मदीने के मुजाफात में एक कुआं था उस जमाने में जो बीर अली कहलाता, वहां मस्जिद बन गई तो मदीने मुनव्वरा का मीकात वहां से शुरू हो जाता। तो जब भी आप मीकात के अंदर उम्रे की गरज से दाखिल हो, बगैर इहराम के अगर कोई शख्स जाएगा तो ऐसी सूरत में उस पर दम लाजिम हो जाएगा। एक बात तो ये है। हाँ, कोई शख्स अगर कारोबारी सिलसिले में जद्दा गया, जिद्दा जाने के बाद उसने नीयत यही की कि मैं 2-4 दिन वहां रहूंगा, किसी से पैसे लेने, कोई माल फरोख्त करना है, 3-4 दिन अपना कारोबार करने के बाद अब उमरा करूंगा, अब ऐसा आदमी जद्दा से इहराम बांध सकता है। लेकिन जो आदमी खास उम्रे की नीयत से गया वो वहां जाकर इहराम अगर बांधेगा तो उसका दम लाजिम हो जाएगा। मीकात से पहले उसको इहराम बांधना। एक बात तो ये। दूसरा, आपने पूछा कि किसी ने उम्रा कर लिया, दोबारा उम्रा करना कैसा और किस तरह करेगा? तो उसमें ये बज़ाहिर हमारी किताबों में यह है कि भी इहराम उतार दे। इहराम उतारने से मुराद ये है उसका कि इहराम की जो क़ुयूद है, जो एहतियात है, वो खत्म हो गई। कब खत्म होंगी? कि वो इहराम बांधकर जैसे कराची से गया, अब उसने काबे का तवाफ किया, नफल पढ़े, सफा मरवा किया, सफा मरवा करने के बाद अब उसने बाल मुंडा लिए। अब बाल मुंडाने के बाद इहराम उतर गया। क्या मतलब इहराम उतरने का? कि अब उसकी जो एहतियात थी वो खत्म हो गई। बज़ाहिर ये इहराम जो बदन पर है, अगर सर मुंडाने के बाद उसे दूसरा उम्रा करना हो तो उसी इहराम के कपड़े से फिर चला जाए, मस्जिद आशा चला जाए या
جورانا جو بڑا عمرہ کہلاتا ہے، یا وہاں چلا جائے حدیبیہ کی طرف، اور وہاں جانے کے بعد میں بظاہر یہ احرام نہیں اتارا اس نے، کپڑا پہنا ہوا، لیکن نیت دوسرے عمرے کی وہاں جا کر کرنی ہوگی۔ مسجد عائشہ جائے اور وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد پھر وہ دوسرے عمرے کی نیت کرے اور پھر آن کر کے عمرہ کرے، وہی ساری چیزیں بجا لائے، سر پر اس طرح لگائے، ٹھیک ہے بہت زیادہ طاقتور آدمی ہے، سارا دن عمرہ کرتا جائے، وہ ایک ہی کپڑا پہنے رہے، اتارنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہر عمرے میں اس کو احرام کی پابندی کرنی ہوگی، کعبے کا طواف کرنا ہوگا، اور اس کے بعد نفل پڑھنے ہوں گے، صفا مروہ کی صحیح کرنی ہوگی۔ اگرچہ اس کے سر میں کوئی ایک بال بھی نہ ہو تو برائے نام بھی اس کو اس طرح لگانا بہت ضروری ہوگا۔ اس طریقے سے آپ دن رات جو ہے کئی عمرے کرتے چلے جائیے، اس میں شرم یہ نہیں کہ اتارنے کے بعد سلے ہوئے کپڑے پہنیے، پھر کپڑے اتار کر پھر وہ پہنی، اس کی ضرورت نہیں، پے در پہ عمرے کیے جا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ان قواعد کا آپ خیال رکھیں۔ چونکہ وقت کافی ہو گیا، بقیہ سوالات کے جواب آئندہ نشست میں، جو کچھ کہا سنا گیا، رب کریم ہم سب کو یاد رکھنے کی اور سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معود الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔